لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه وحافظا لدينه ومخالفا لهواه ومطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. As I promised yesterday, in my last majlis I am going to talk about this subject, and which is very important, and this is the subject which the title and the topic of subject is taqleed. Remember, when we are talking about the religion, it has two parts when we talk about the iman or whatever. One is aqidah, which is called faith or belief. The second, which is amal, action. The first part, which is known as usul-e-deen, series of faith, mainly the five: tawheed, adl, nubuwwat, imamat and qiyamat. Here we must have some logical proof why we do need some logical proof in our faith and in our aqaid. The reason is simple: to make your belief stronger. Because if someone is believing in Allah or Rasul or Imamat or Qiyamat, if he has belief and he has some of the proof about his faith, so he is able to convince himself. At the same time, he is able to convince the other people. Our problem is that we don't have the strong belief in Allah or the Tawheed or Nabuwwat or Imamat. The reason is that because my parents, they told me that Allah is one, so one. They told me there are 124,000 prophets. Why do we need it? There are 12 Imam. Why they are? Why they are from Allah? There are so many things we must have the proof. Why we do need Qiyamah? So first, for the strength of your own faith and iman. Number two, then you will be able to convince the other people. Remember, everyone, his intelligence is not equal. Like every prophet, they have the aql and wisdom, they all were not equal. Some of the prophet just for themselves, some of the prophet just for the small locality, some of them just for the town, some of them just for the period, some of them they brought the Sharia. But our Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat padhe baawaaz buland, Allahumma salli ala he is prophet and Nabi for the all universes. He is prophet for every prophet. I'll give the example. You know, when we are going to learn in the Hawza,
students, those who are in the houses, they all are not in same class. They all are not in same level. There are the different level of the students and their classes. Of course, there are the graduate, postgraduate, mujtahid, PhD, doctorate. Then alam, the most learned or the highly learned person. But in the same class also, all the students are not equal. Once, there were the 3 students of the one Maulana and one Mujtahid. It is still today, that system is in the practice. In the month of Ramadan, in the month of Muharram, they are sending a student for the tabligh. Because this is the best time. So in the month of Ramadan and Muharram, they are sending Muballigh to their town or the place where the people they meet. These they were the 3 students for the one scholar. He said, now you have the holidays in the month of Ramadan. From that example, I would like to explain to our kids and our youth. He said that number 1, you go and do tabligh in that big city like Lahore, Karachi or some. The other Muballigh, other student, he said, okay, Alhamdulillah, I am happy with you and with your progress, but you do one thing. You go and do the tabligh and that in that small village from where you came. The third one, he said, Alhamdulillah, I am happy with your progress. You go and do tabligh in your family. MashaAllah. They all were the 3 students, one teacher, in one class. They were studying the same. But what was the difference between these 3 students? One for the big city, like Lahore or Karachi or Islamabad. Or other one for the some small village. The third one just for the family. One of the students, he asked, so why? Aga, chero. He said, remember, Alhamdulillah, you all are good in your studies. You all are practicing. You all are, Alhamdulillah, obedient to Allah and Rasul and Imam. I am happy with your performance. But the mas'ala is that, the problem is that when you are going for the tabligh, because that person is capable to convince the people of the town and city, because he has the very good command to convince the other people. Wow, wow, wow. So for that reason, I am sending him for the town or city. The other one, he is very good. MashaAllah. But he is able to just convince the people and the people of the village and their approaches he can understand. Besha. But the third one, you are very good. But you are unable to convince the other people. So sometimes you know the religion, but you are unable to satisfy or convince the other people. So that's very important. He said, okay, you do tabligh in your town, in the city or in your family. You all are good. But there was the reason, because you are very good to convince the other people. So you go to the city. Okay, now the issue of Usuluddin, it finished. You must have the proof and logic. What do you believe? Number 2, Furu'id-Din. Furu'id-Din, remember, this is a series of action. Don't say just 10 things are in the list of Furu'id-Din, only these are wajib. There are some other wajib. These are very important, about which Furu'id-Din it talks. When we are saying Usul-e-Din, so these are the 5 base. Otherwise, we have the series of the Usul and Faith. You can read the book about the Aqaid, and especially Aqaidul Imamiyah, written by Sheikh Muzaffar. He was the great scholar in Iraq, in Najaf. And there are some other book from Aghai Ayatullah Sayyid Mahmud Hussain Tabatabai. And you can get these books in your language also, in the form of translation. Now the issue of the Furu'id-Din. In Furu'id-Din, of course, there are the 3 ways to practice. Either you can be a mujtahid. It's not an easy job to be a mujtahid. Of course, to pretend this one, myself or yourself as a mujtahid, or to talk about that's very easy. Wow, wow. But becoming mujtahid, it's a difficult job. Besha. One mujtahid,
He's spending life for the 60 or 70 years, and thereafter he's saying, I am nothing, I am just talib ilm. Ah. They are all mujtahideen. Second way is muhtat. Muhtat, the one who knows the fatwa of the all maraji of the time. What Agha Sistani said? What is the opinion of Agha Khamani? What is the opinion of the Sayyidul Hakim? What is the opinion of the other maraji? Hafiz Bashir. Thereafter he choose the way which is the best way and where there is a ihtiyat and precaution. I can give the example from where you can understand. Suppose one mujtahidi said, in the third and fourth rakat of Maghrib, or Maghrib in third rakat, in Isha third and fourth, Zohr and Asr, it is recommended to read the Tasbihat Arba. One mujtahidi said 3 times, wajib. Another one he said once. So what you supposed to do? If you are not doing taqleed, you must have the knowledge of the all marajis fatwa and someone who is near to the status of the ijtihad. He is muhtat. So if you know the difference of the fatwa, now your duty is to read the 3 times. Why? Because if Allah wanted from you once, so already it was read. If 3, so you are doing it. The same way in the issue of another example I can give, example of namaz-e-Jummah. Suppose if you are not doing taqleed, I am telling you no one is in this category here. You can say, I am going to do the ihtiyat. You are not in that category. We are in the third category. Now, suppose one marja, he said, namaz-e-Jummah is wajib, thereafter no need to pray the namaz-e-Zuhr. Then he read another marja, he said, okay, namaz-e-Jummah is wajib, but ihtiyat is to offer the namaz-e-Zuhr also. In that case, he prayed the namaz-e-Jummah also, and he's supposed to pray the namaz-e-Zuhr. Because if Allah wanted from you namaz-e-Jummah, so it was done. If namaz-e-Zuhr was asked by Allah, so already it was performed. So this is the ihtiyat. The third category is the big majority. They are muqallid. They are follower. Those who are doing taqleed. Those who are following the fatwa of the mujtahid and marja of their time. Remember now, more than 300 tawzi'ul masail in Qawm. They are in that category. But you cannot follow everyone who has the tawzi'ul masail. Among them, the one who is highly learned or the most learned. Wow. Maximum number of the ulama, they are saying either Agha Sistani or Agha Khamani. Some other, Agha Lutfullah Safi Gulpaigani and Agha Wahid Khurasani and some other name also. But these are the 2 big names. So now you are doing taqleed of these people. Taqleed is wajib. Because there were the 3 ways. Either you be mujtahid, you are not. Or do the ihtiyat, you cannot. And the third way is, be a muqallid. If you are saying, see, I cannot be a mujtahid, either cannot be a mujtahid or muhtat, but I am not doing taqleed. But I am praying namaz. My own way. I am fasting. I went for Hajj. If you went for Hajj, again you are supposed to go for the Hajj. That Hajj is not acceptable. That namaz is not acceptable. You must do the taqleed to follow the mujtahid. But the issue is that, why I follow one mujtahid and alim? I am following imam. Remember, you are not in that category or position to understand the instruction of or guidelines of imam or imam of the time. The one who is in that category. And remember, actually the obedience of the mujtahid and marjan, this is the itaat of the imam. Itaat of the imam. Because there is a hadith from our 12th imam, Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala for al Imam said, فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. These mujtahideen, they are hujjat from us. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. There is a link between you and Allah. Mujtahid, he is linked between you and imam. And imam is linked between Allah and mujtahid. If one is obedient to them, so that means he is obedient to Allah. One is disobeying
Mujtahid. So that means he is not disobeying him, he is disobeying Allah. Allah. बेशक. Now the another issue related to this ijtihad. That hadith in the beginning which I read for you. Our 11th Imam Hasan Askari alayhi salatu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Our Imam said, Man kana min al-fuqaha. The category and the quality of mujtahid. Man kana min al-fuqaha sa'inan li nafsi. The one who is from the group of mujtahid and faqih, sa'inan li nafsi, who control his nafs. He is not sensual. He is not controlled by his nafs. Remember, the mu'min, he is not controlled by his nafs. The mu'min, the one whose wisdom control his nafs. Wow. Wow. He is mu'min. Because a person visited our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Yes, Malam, I wanted to know that whether the angels are better or Imam Ali. Whether angels are better or Imam Ali. Imam Ali. Our sixth Imam, he said, what you are talking about the angel and Imam Ali? Is there any comparison between them? So you are saying Imam Ali is better? Don't say is Imam Ali is better than them. You say either angels are better or the follower of Imam Ali. Wow. Wow. Muhibban Ali. Wow. Wow. Thereafter Imam explained to them. He said once that question was asked in the time of Rasulullah also. And I am giving the answer of Rasulullah. Imam said. He said, see, when Allah created the angels, Allah gave them just wisdom. Wisdom means to obey Allah, obedience. When Allah created the man, he came with the choice, wisdom and desire. When Allah made the animals, Allah gave them just desire. Then Imam said, see, because angels, they don't have the choice except to obey the Allah. Their obedience to Him. Animals, of course, they don't have the wisdom. They have the desire just only. But the man, he has two things, wisdom and desire. Then Imam explained, when wisdom of the man control his desire, at that time, that man is better than angels. Why? Because he has the choice, but he has gone for the best one. Wow. And when his desire control his wisdom, he is worse than animal. Wow. So you have the two choice. Either you go up or go down. Salawat pray Baba Buland. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. So there is no second class, either first class or third class. So Imam said this is the category. Now issue is that about the ulama. Sa'inan li nafsi. Our mujtahid, he control his nafs. He's not going behind his nafs. I can give an example from the life of Allama Hilli. I can give example from another Malaji, just one only today. Allama Hilli, when he gave the fatwa of the taharat of the well. In the past there was the problem of the water. The one who has the status or the well settled, or we can say the rich one, he has the well in his house. But at that time there was the issue that, see, if animal was dead or fall in the well and thereafter died, so whether that water is pak or najis. Before the fatwa of Allama Hilli, everyone they believe that no, it is not pak, it is najis. Allama Hilli, he did the tahqiq from Quran and Hadith and the issue of the taharat. Finally, before he gave the fatwa, what he did? He completely blocked his well, put the bricks or other thing, and thereafter he closed. Once he did, thereafter he said, this is the issue of the taharat of the well. If there is a big animal gone in, you take out 40 bucket of the water. If like a cow, 30 bucket of the water. If another animal, 25, 20 or 10 and 7, and last the 3s. Take out and thereafter. First you remove that animal and then bucket of the water, and your well is clean and it is pak.
But he is not giving fatwa at that time when he has the well. Wow. First he closed the mouth of the well and Wow. thereafter he gave the fatwa. So Wow. that is sign li nafsi. Thereafter, mukhalifan li hawa. He is opposing his desire. That is a mujtahid. Look at the example of Imam Khomeini. Look at the example of another Mazaji. Mukhalifan li hawa. Thereafter, وَمُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى. The one who follow the instruction of his Mawla. And there are the three Mawla in the Quran Majid. Allah, Rasul and Imam. The one who is obedient to all these three Mawla. Thereafter, Imam said, فَلِلْ أَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. Thereafter, people, they must follow him. Now, last but not least, remember, if we understand, taqleed is wajib. If someone has not done in the past, of course, from today, you must check who is alim, start doing taqleed. When you are saying I started doing taqleed, you must have the fatwa of that mujtahid. I'm in the taqleed of Agha Sistani, I'm in the taqleed of Agha Khamri, I'm in the taqleed of any marja. You must have the book and Tawziul Masail from when you can learn the Masail and the instruction of the marja. Wow. Another issue is that, Yes, sir. related to it. Okay, what about me if my age is 42 or 43? I was praying, I was regular. I was fasting, I was doing my amal. Do I need to repeat the all amal? Do I need to fast again? Here in this masala, of course, here one thing is that you refer the fatwa of that mujtahid. If that amal is match with the fatwa of that mujtahid, then your amal is okay. Wow. If you are not satisfied, thereafter you write or you contact that mujtahid or the wakil of that mujtahid, and thereafter they will say, okay, then okay. Inshallah it will be okay. But remember, I would like to tell you how important taqleed is. For that reason, remember, inshallah, so you start doing taqleed for the girls, not in the age of 15, in the age of 9, but Islamic date, Islamic calendar. For the boys, there are the three conditions I mentioned before. As per that condition, not just the one who has completed 15 years. Maybe he could be baligh in the age of 12 or 13 or earlier than that. So remember, from that time they're supposed to pray their namaz and everything, and at the same time taqleed is wajib from that time. And one more thing, people, they are asking about the homes. Remember, when you are becoming baligh, from at that time every wajibat with the condition, it's become wajib upon you. If someone is working or earning money, of course khums is wajib for them. Because see, if someone is working and that boy is 15 or 14, and if he works in Pakistan, in India, we said this is child abuse. But the one who works in Australia or UK in that age, so they are saying actually this is the training and planning and preparation for the future. So there are the different things. If they do something, so it's good. If you are doing something, it's wrong, whether you need it. So now last but not least, that just I would like to explain here one very important masala. Remember, issue of the homes also. If they work, they earn, of course there is a homes. If they are receiving some pocket money from their parent, or mashallah, Baitul Mal se bhi milta hai. So if they receive something from Baitul Mal, Centrelink. So what they are receiving from the Centrelink, they must fix the date, and on that day whatever left, that is considered as their saving or the balance, and they are supposed to pay 1/5. Salawat padega Baba Buland. Allahumma salli ala Muhammad wa ali हाँ, दुआ कीजिए कि मुस्लिम मुल्कों में भी बैतुल माल का सिलसिला शुरू हो जाए इंशाअल्लाह. Inshallah. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून. तक़रीर के आखिरी हिस्से में सिलसिला मजालिस में आखिरी मरहले पर आ चुका. दिन के एतबार से, तारीख़ के एतबार से, मजलिस के सिलसिले की आखिरी मजलिस के उन्वान से, गरचे जो आयत पढ़ी गई
उस आयत के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होने के बाद बकिया ज़रूरतों के ऊपर गुफ्तगू होती रही, मैं अपने मौजू के साथ वफा नहीं कर सका। लेकिन ये नहीं कि मौजू के साथ वफा की नहीं की तो मैं बेवफा करार दिया जाऊंगा, इसलिए कि मैं आपके दिए हुए मौजूआत के साथ वफादारी कर रहा था। बहरहाल अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि हम ये देख रहे हैं बच्चों की तरबियत के उन्वान से बड़ी गुफ्तगू हो चुकी। आया बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी महज औरतों की या सिर्फ मर्दों की है या दोनों की है? यहां मैं इस पोजीशन में मैं अकेले कह दूं कि सिर्फ औरतों की है, क्योंकि मेलबर्न में नहीं पढ़ रहा हूं। मौलाना की तो मैं मेलबर्न में अगर नहीं पढ़ रहा हूं तो उस वक्त मैं कह सकता हूं कि सिर्फ औरतों की है, लेकिन ईमानदारी ये नहीं होगी कि जो ये कहा जाए। याद रखें, हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों के मामलात में बहुत आसानी से अपनी गर्दन बचा लेते हैं। ये गर्दन बड़ी आसानी से बचा ली जाती है कि देखें भाई बीवी ने कहा क्या करें कि मर्द की है, मर्द ने कहा बीवी की। नहीं अजीजान इकरामी, दोनों की जिम्मेदारियां हैं, मर्द की भी है औरत की भी है। अजीजों, यहां यह करना होगा कि औरत अपनी जिम्मेदारी को ले ले, मर्द अपनी जिम्मेदारी को ले ले। याद रखिएगा, औरतों के पास सलीका समझाने का बताने का मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होता है, मर्द नाराज ना हो। और ये कहने वाला भी एक मर्द ही कह रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि समझाने की सलाहियत, शफकत पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम निज़ाम तालीम में इब्तिदाई तालीम के लिए अक्सर औरतों को चुना जाता है। फिर उसके बाद अब दूसरी चीज ये है, हाँ वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी औरतों को इसी शफकत की वजह से रखा जाता है, क्योंकि अगर मर्द बचपन में बच्चों को पढ़ाने लगे तो बच्चे घर या स्कूल के नहीं हॉस्पिटल के हो जाएंगे। लेकिन हाँ ऐसी हो, लेकिन एक मंजिल आती है कि जहां बच्चा बड़ा होने लगता है, कई मर्तबा वो बातें बच्चे मां की नहीं समझ पाते, तो ऐसी मंजिल के अंदर बाप को भी साथ देना होगा। बस दोनों के ताउन के साथ एक घर चलता है। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हुआ चलूं जहां खुदाबंद ताला इरशाद फरमा रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खुदा ने यह नहीं कहा कि तुम अपने आप को बचाओ, अच्छा अपने आप को बचाओ नहीं कहा, बल्कि कहा अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। कहां से बचाओ? कहा टैक्स ऑफिस के टैक्स से बचाओ। कहां से बचाओ? होने वाले हादिसात से बचाओ। नहीं, कुरान मजीद ने कहा अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कितनी सख्त अजीज हो, जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाना, अपने अहलो अयाल को भी बचाना। आगे कुरान मजीद ने कहा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, इसलिए बचाओ जहन्नम की आग से क्योंकि जहन्नम की आग का ईंधन या इंसान होगा या पत्थर होगा। ईंधन का क्या मतलब होता है? गाड़ी चल रही है और गाड़ी रास्ते में रुक गई। खैर पहले तो कई मर्तबा तंबीह करती है। हम ऐसे गाफिल लोग, हमें जो है गाड़ी तंबीह करे हैं, हमें जो है मोबाइल तंबीह करे, हमें घड़ी तंबीह करे, हमें स्मोक अलार्म तंबीह करे, हमें फायर अलार्म तंबीह करे। खुदा रसूल इमाम तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन ऐसे हम ढीठ हो चुके थे, ना उनकी तंबीह समझी ना इनकी तंबीह समझी। नहीं अजीजो, वो तंबीह समझते नहीं, लेकिन ये समझते कहां करीब में कोई पेट्रोल स्टेशन देखो का 10 किलोमीटर के ऊपर है। हमारी गाड़ी 12 किलोमीटर तक जा सकती है, खुदा का शुक्र है, लेकिन फिर भी उसके बाद लगा हुआ 12 बता रही है। मशीनें बिल्कुल दुरुस्त नहीं कहा करती। अगर कहीं 8 पे रुक गई, 9 पे रुक गई और कहीं 9:45 पे रुक गई तो भी मुश्किल होगी ना। का उसकी तंबीह तो समझ में आ रही, लेकिन कुरान मजीद में खुदा कह रहा है कि अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से, क्योंकि जहन्नम का ईंधन यानी जलने वाले नहीं, जिनके जरिए से एक गुनहगार वो होगा। सुनिएगा जुमला, ईंधन क्यों कहा? एक गुनहगार वो होगा जो अपनी गलतियों की वजह से, गुनाहों की वजह से जलाया जाएगा, और एक गुनहगार अपने गुनाह की उस मंजिल पर पहुंचेगा कि ऐसा जलाया जाएगा कि उसके जरिए दूसरे गुनहगारों को जलाया जाएगा। ईंधन बन जाना कितनी सख्त बात है। अब मैं यहां पर एक गालिब का जुमला कहूंगा, आप लोगों ने सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। गालिब बड़े मौलाई किस्म के थे,
लेकिन याद रखिएगा गालिब के सारे अमल की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग क्यों हम बहुत जिम्मेदारी थे, जब आपके साथ गुफ्तगू करते हैं तो भी जिम्मेदारी के साथ, मिंबर से गुफ्तगू करते हैं तो ये तो जिम्मेदारी की जगह ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में अक्सरियत ऐसी आ रही है जो मिंबर के हवाले से अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पा रही है। अब आप ये देखिएगा, गालिब मौलाई थे, बल्कि हमने तो मौलाइयत का सर्टिफिकेट ले लिया। मौलाइयत के सर्टिफिकेट का मतलब ये कि तुम कुछ भी करो मौला बख्शवाएंगे। शफात की बात कर रहा था अभी परसों भी, आज रास्ते में भी, कि मौला शफात करेंगे। क्यों भाई? क्या हमारा चाहने वाला है। यकीनन इमाम का वादा सच्चा, नबी का वादा सच्चा। बखुदा कुरान मजीद की आयतें मौजूद हैं जिसमें खुदा कह रहा है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से। वो सारी आयतें पढ़ूं तो वक्त लग जाएगा, जहां तर्जुमा बल्कि उसका एक खुलासा बताना चाहता हूं कि अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के ये मुंतखब बंदे शफात करेंगे। लेकिन शफात के माने क्या, ये समझ लीजिएगा। शफात के माने, शफ के माने किसी चीज के दो हो जाने के, 0 से 2 नहीं होगा। वाह 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 वाह। 0.25 से 2 नहीं होगा, बस कुछ हो उसके बाद 2 होगा ना। अज़ीज़ान ग्रामी, अइम्मा ने कहा कि तुम अपने अकायद मजबूत रखना, उसके बाद आमाल करना। अब जो कमी हो जाएगी उस कमी को हम पूरा करेंगे। बस कमियों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली इमाम ने, लेकिन ये कहा कि तुम मुकम्मल कमी का नमूना बन जाओ और उसके बाद हम शिफात करेंगे। ऐसी जिम्मेदारी हमने तुमसे नहीं ली है। सलावत पढ़ें बाबा। माशाअल्लाह, देखिए ये दीदार समाज की अलामत है कि ऐसे सब जुमलों पे नारे लगते हैं, वरना फिर मौलवी को क्या मिलता आप जानते हैं। लेकिन आइए अज़ीज़ान निगरानी, अब वापस आए। बस शफात देखा कि अमल हो, उसके बाद जो कमी होगी इमाम पूरी करे। कमी की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी मंजिल, माशाअल्लाह मेडिकल बहुत आगे यहां पर, और क्यों ना हो जहां पर डॉक्टर अकील साहब जैसे लोग। तब आप ये देखिए कि अब आप मरीज लेकर आए डॉक्टर के पास, शिफा वो देने वाला खुदा। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम देता ही नहीं। और बल्कि ऐसे बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी हमने हकीमों के बारे में सुना भी है कि बहुत उनका चर्चा था। अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा दे रखी थी। जिस दिन से उन्हें यह ख्याल हो गया शिफा मैं देता हूं, उनके हाथ से कितने मरीज जाने लगे। कि अब अच्छा, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में तो बहरहाल तमन्ना करता आदमी सेंचुरी हो जाए, इसमें तो कोशिश ये करता है कि आदमी जो है 2 फिगर में भी ना जाने पाए। हाँ, 2 फिगर में भी ना जाने पाए। अंदाजा लगाएं कि बहरहाल बच्चों की तवज्जो के लिए एक मरतबा सलवात पड़ेगा बाबा से। एक साहब बीमार हुए, एक साहब बीमार हुए, उनसे कहा, एक जमाना हकीमों का जमाना था। आप देखते पूरी पूरी बस्ती कभी ऐसी होती थी। हमारे कराची में पूरा पूरी बाजार है। तो अब एक बस्ती थी, एक आदमी बीमार, उसने अपने दोस्त से कहा यार मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, बहुत बुरा हाल है, क्या कहूं। कहा वो फला गांव है, रावी के उस पार है। अच्छा, रावी ज़ईफ हो गया है दोनों जगह का, तारीख का भी और हमारे मुल्क का भी। तब आप ये देखिएगा, तो बात ये कर रहा था क्या वो कहा कि उस पार है, चले जाइए, वहां हकीमों का गांव है, सब के सब हकीम, किसी को भी दिखा दे। अच्छा, बड़ी मुश्किल होती है अगर बस्ती में कोई डॉक्टर हकीम ना हो तो भी मुसीबत, इतने हो जाए तो भी मुसीबत है, किसके पास जाए। याद रखें, अभी कैनबरा का मसला यह है कि एक मौलाना भी नहीं है, यह भी बहुत बड़ा मसला है। और अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो भी मसला हो जाता है। तब आप ये देखिएगा, अब हुआ ये कि वहां जो वो पहुंचा, हैरत से देख रहा है सारे हकीमों के घर, कहां जाऊं मैं। अच्छा, वो जमाने में एजेंट वेजेंट का सिलसिला भी नहीं होता था भाई, होता ये था कि फ्री में दवा भी भेज दी जाए, कुछ हो जाए फीस के अंदर से भी रख दिया जाता था। अब वो पैथोलॉजिस्ट जो हैं, फिर एक्सरे जहां पर होता है, वो तमाम के तमाम वो फार्मेसी वाले, आपको पता चला वो पेपर भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, आप उन्हीं के पास भेजते हैं, है ना। तो अब ये हुआ, ये हो गया, वहां पर कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, मुझे तजुर्बा हुआ हिंदुस्तान के अंदर भी। अभी वालिद जब बीमार थे तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल से जो दवा लिखी जाती थी नीचे उतरता था लेने के लिए, 2-3 जो है फार्मेसी आसपास में। एक नौजवान दौड़ा हुआ आया, क्या ठीक हूँ ना, दवा लेनी आइए मेरे साथ, यहाँ से मैं आपको 5% डिस्काउंट दिला दूंगा मैं टोटल में। फिर वो तमाम चल रहा था। मैं आखिर में जब
कुछ दवा इसके पास नहीं थी तो दूसरे के पास से ले रहा था। अब देखा ये दो लड़के जो है नौजवान यहाँ बैठे रहते थे, वो या तो यहाँ या वहां ले जाने के लिए उनका वहां पे भी बंधा हुआ था। तो आप अंदाजा लगाएं ये चक्कर उस दिन समझ में आया कि जब वालिद डिस्चार्ज हुए थे। तब आइए मैं जिस चीज की तरफ आना चाहता हूं, अब हुआ ये कि वहां जो पहुंचा तो देखा इतने हकीमों के घर, समझ में नहीं आ रहा कहां जाए। देखा किसी दरवाजे पे 10 चिराग जल रहे हैं, किसी पे 5 चल रहा है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 1। फिर उसने देखा कि एक घर है जहां कोई चिराग नहीं जल रहा है। इसने कहा थोड़ा सबसे अलग है ना। आदमी की कोशिश ये होती है कि जो सबसे डिफरेंट करे। खानदान में तमाम भाई बहनों की जो है तरबियत जो है इस्लामी तरीके से हुई थी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, जाके चर्च से बाइबल लेके आता हूं, वो पढ़ता हूं। डिफरेंट हो जाएगा ना। ज्यादा डिफरेंट के तजुर्बे ना करें, बहुत कई मर्तबा क्या होगा घर से सारा हलाल चला जाएगा, फिर सारा हराम आएगा। खुदा न करे ऐसा होने पाए। बस जाने ग्रामी आइए वापस चलाऊं। अब इसने देखा कि यहां कुछ नहीं है, दरवाजा खटखटाया, हकीम साहब निकले, क्या कहिए बेटा, क्या मुझे ये मर्ज है, ठीक हो जाएंगे आप, क्या कुछ गोलियां ले लीजिए, क्या ठीक है साहब। अब निकलते निकलते याद आया कि हकीम साहब से एक सवाल करना कि हकीम साहब ये दवाएं हैं ले जा रहा हूं, आपने बताया कि इससे जो है काम हो जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बता दें, मेरी समझ में नहीं आया। वो तो आपके दरवाजे में आ गया, कहीं 4 चिराग जल रहे, कहीं 10 जल रहे, कहीं 20 जल रहे, कहीं 1 जल रहा, आपके 1 भी नहीं जल रहा है। हकीम साहब ने कहा मसला ये कि हकीमों ने उनकी दवाओं से जितने लोग मरे हैं उतने चिराग जल रहे हैं। कहा आपके तो 1 भी नहीं जल रहा है। कहा इंशाल्लाह जलेगा, आप दवा तो खाइए। तो इंशाल्लाह जलेगा, आप दवा तो खाइए। बहरहाल मैं वापस चला हूं, सलवात पड़ेगा बाबा से, वहां पे इंशाल्लाह हयात का चिराग रोशन होगा। लतीफे में हकीम है, डॉक्टर नहीं है। सलवात पड़ेगा बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आगे देखिएगा, बात इंतखाब की हो रही है, इंतखाब की। कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बाज़ीज़ान ग्रामी, ईंधन है, इंसान ईंधन हो जाएगा, दूसरों को जलाए जाने का सबब बनेगा। कितनी बदबख्ती की बात होगी कि सजा की उस मंजिल पर पहुंचे जो दूसरों के लिए सजा बन जाए। हाँ, ऐसे कितने गुनहगार हैं जो दूसरों के लिए सजा बन जाएंगे। अंदाजा लगाएं, गुनाहों में से गुनाह का नाम है गीबत। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी आदमी गीबत क्यों करता है, उसका एक सबब बताता चलूं। भाई इसकी गीबत, उसकी गीबत, बजीजो कई मरतबा कोई मौलाना आपके साथ अच्छा ही नहीं लगता, बस वही कुरान हदीस की, कभी कुछ चरखारे की बातें भी तो क्या कीजिए। भाई मसला ये है कि हम स्पाइसी खाने के आदी हैं। स्पाइसी खाने के आदि, वो भी स्पाइसी के साथ अगर गोश्त हो। और रसूलुल्लाह ने और कुरान ने और मसला हल कर दिया कि जो अपने भाई की गीबत करता है मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। गोश्त भी मिल गया ना, रेशे भी आ गए। बल्कि इस आयत की तफसीर में कि एक बड़ी बीवी, उन्होंने एक मर्तबा रसूल की एक दूसरी ज़ौजा की बुराई की। रमजान का जमाना है, बस जैसे उन्होंने बुराई की तो एक मर्तबा रसूल ने कहा तुम रोजे की हालत में थी और उसके बाद तुमने गोश्त खाया है। वो कहती या रसूल अल्लाह मैं रोजे से हूं, मैं कैसे गोश्त खाऊंगी। कहा तुमने अपने रोजा बातिल कर लिया है। रोजा बातिल कहने वाला रसूल था, रोजा बातिल कर लिया। कहा खुदा मैं रोजे से हूं। रसूल ने कहा जरा खिलाल करना, दांतों में गोश्त फंसा हुआ है। खिलाल करना, दांतों में गोश्त फंसा हुआ है। कहा मैं सहर के वक्त साफ कर चुकी, कुछ भी नहीं है। अब जो खिलाल किया गोश्त निकल आया। फिर रसूल ने कुरान की आयत पढ़ी कि जो अपने किसी भाई की गीबत करता है तो वो मुर्दार का गोश्त खाता है। लेकिन मैं जो वजह बताना चाहता हूं कि आखिर इंसान गीबत करता क्यों है, इसलिए कि जब हम सुबह आईने के सामने अपने खड़े होते हैं, देखते हैं, तो हमें पता है कि हम में ये गंदगी है, हम में ये गंदगी है, हम में ये गंदगी है। तो हम ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा गंदे लोग मौजूद हैं, हम तो फिर भी बेहतर हैं। ये वो मामला उस कमीज का है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है, जो दिखाया जाता है। बाज़ीज़ान ग्रामी, मसला है कि अपने आप को पाक और साफ किया जाए, उस गंदगी से निकला जाए। बाज़ीज़ो ये गीबत के ताल्लुक से एक चीज और भी बताता हुआ चलो। इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने हजरत मूसा को वही की। इस मौजू पे बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की जरूरत, लेकिन एक दो जुमले बच्चों की तरबियत हो जाए और उसके बाद बताना चाहता हूं कि अगर कोई गीबत करता है और उसके बाद नादिम व रिग्रेट हुआ, तौबा की,
अल्लाह से नहीं, जिसका मामला उसको राजी किया। अगर उसको राजी कर लिया तो जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे आखिरी होगा। और अगर गीबत की और उसके बाद वो आदमी उससे राजी नहीं और उसको राजी नहीं किया, उससे माफी नहीं मांगी, तो जहन्नम में जाने वालों में पहले लोगों में होगा। नमाजों में आप जो इबादत के सवाब बताए गए, 1 रकत का इतना है, शादी कर लो तो 70 रकत है, माज मुसलमान जिनको 4 के ऊपर बड़ा यकीन, बाकी दीन में कुछ समझ में नहीं आता, 4 समझ में आता है, सवाब ज्यादा, 4 ज्यादा है, इसमें कि 280 रकत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन 280 रकत तो जाएंगी, लेकिन उसके बाद 28,000 छूट जाएंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल अदालत का मौजूद, लेकिन मैं जिस चीज की तरफ चला आ रहा हूं वो ये बताना चाहता हूं, बस ऐसी चीजें जो अपने फायदे की, वो चीजें सब कुछ याद रहती हैं। अब आइए मैं जिस चीज की तरफ आना चाहता हूं, गीबत के ताल्लुक से मासूम ने फरमाया कि जो आदमी होने वाली गीबत को रोकता, खुदा उसको 1000 पढ़ी जाने वाली नमाजों से ज्यादा सवाब देता है। वाह वाह। गीबत रोकी, सवाब कितना? अच्छा, 1000 रकत के लिए अगर आपका एवरेज 1 मिनट का भी हो तो कितने मिनट लगेंगे? 1000 मिनट लग जाएंगे। गीबत रोकी, सवाब 1000 रकत से ज्यादा का। आखिर मौला इसका सवाब इतना ज्यादा कहा इसलिए क्योंकि याद रखो, नेकी का करना आसान है, नेकी का करवाना आसान है, लेकिन बुराई से बचना मुश्किल और बुराई से रोकना मुश्किल है। लिहाजा बुराई से जब रोकना मुश्किल है तो उसके लिए अजर ज्यादा रखा गया। मासूम एक जगह और फरमाते हैं कि जब कोई गीबत करता तो ये गीबत, अगर गीबत के माने क्या है जानते हैं आप? कि किसी आदमी की कोई बात कहना उसकी गैर मौजूदगी में जो उसमें पाई जाती हो। कई मरतबा हम ये कहते हैं मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये तो उसमें है, अगर ना हो तो फिर तोहमत हो जाती है, दोहरा गुनाह हो जाता है। तो इमाम ने फरमाया कि अगर ऐसा किसी मोमिन की कोई गीबत करता है, मोमिन साले की गीबत करता है, तो उसके बाद ये कुफ्र है। और अगर मोमिन साले की कोई गीबत करता है दूसरा सुनता है तो वो शिर्क करता है। अंदाजा लगाएं, गीबत कुफ्र में भी पहुंचा देती, शिर्क में भी पहुंचा देती है। मगर जिस जुमले की तरफ आना चाहता था गीबत के हवाले से कि गीबत कितनी खतरनाक चीज है, मासूम फरमाते अल गीबत क़ूत किलाबिन नार, गीबत जहन्नम में जाने वाले कुत्तों की ग़िज़ा है। अल्लाह अकबर। तो हमें यकीनन अपने समाज को इन तमाम बुराइयों से, गुनाहों से पाक रखना है और अपने भाइयों को राजी करके आगे बढ़ना है। अजीज़ान इकरामी, आइए, मुझे महज इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी है, मुहासिबे नफ्स, अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने रब को राजी रखना है। हमारे 11वें इमाम का एक मुकालमा है बहलोल के साथ, याद रखिएगा, इनकी मोहब्बत में जन्नत खल्क हुई है, इनके लिए मसला जहन्नम का नहीं है। लेकिन जो इमाम दुआओं में कहते हैं या हमें बताते हैं ताकि हम समझ सके एक पैगाम है ये, वो हदीस तो आपके सामने कि अगर सारी दुनिया मोहब्बत अहले बैत के ऊपर, और बिलखुसूस हदीस के जुमले कि अगर अली की मोहब्बत पे सब मुत्तफिक हो जाते तो खुदा जहन्नम को खल्क ही ना करता। ये वो है अहले बैत। लेकिन आप अंदाजा लगाए, बहलोल ने एक मरतबा 11वें इमाम को पहचानते नहीं है, और उसके बाद 11वें इमाम जो हैं उनको लंबे सज्जे करते हुए, इबादत करते हुए देखा, और उसके बाद सज्दे आखिर में तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलमात पढ़ते हुए। याद रखिए, हमारी तालीम के लिए मासूमीन बता रहे हैं ना। तमाम हुआ तो बहलोल ने कहा अभी तो आप नाबालिग हैं, अभी तो आप छोटे हैं, ये तौबा इस्तिग़फ़ार किस लिए? वो तो इस्मत की मंजिल में वो जानते ही नहीं थे। तो इमाम ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। कहा बहलोल, मैंने अपनी माँ को देखा है जब वो खाना पकाती हैं तो जब बड़ी लकड़ी के टुकड़े को जलाना चाहती हैं नहीं जलता है तो छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों को डाल देती हैं, उन्हें जलाती हैं तो उसके बाद बड़ी लकड़ियां जलती हैं। शद्दाद, नमरूद, ये जो बड़े नाफरमान हैं उनके जलाए जाने का सबब कहीं हम छोटे ना बन जाएं। अब मैं मिर्जा गालिब की जो बात कर रहा था, आप कहीं वादा करके भूल गए। मिर्जा गालिब, मैंने कहा किरदार की कोई जमानत नहीं, हम मोहब्बत का इजहार करते थे। तो मिर्जा गालिब के लिए कि मिर्जा गालिब ने एक जगह कहा कि परवरदिगारा, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं जानता हूं मेरा ठिकाना जहन्नम है, लेकिन उसके बाद भी हम एड्रेस तब्दील करने के ऊपर मुसिर नहीं है, उसी एड्रेस पे रहना है। कहा परवरदिगारा, मैं जानता हूं कि मेरा ठिकाना जहन्नम है, लेकिन एक बात जो बड़ी पसंद आई, दिल को लगती हुई,
हर शिया के दिल को लगती है। कहा मगर परवरदिगारा, जब मुझे जहन्नम में जाना तो मुझे जहन्नम में उस जगह रखना जहां अली के उन दुश्मनों को रखा जाएगा ताकि उन्हें जलाने के मैं काम आऊं। वाह वाह, उन्हें जलाने के काम आऊं। तो भाई अजीजों, ये ईंधन की बात आपने ये देखी, लेकिन आइए ईंधन के हवाले से अजीजान ग्रामी, हम कई मर्तबा जब अपनी जिंदगी को चेक करते हैं तो याद रखिएगा, मीठा मीठा सब मेरा, खट्टा खट्टा आग तू। तो हमारा यही मामला है कि जो भी अच्छाई है उसकी निस्बत हमारी तरफ, जो भी बुराई उसकी निस्बत सामने वाले की तरफ। हम जब भी दूसरे को देखते हैं तो उसमें अच्छाई दिखाई नहीं देती, जब अपने को देखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। यही सबसे बड़ी बुराई, यही सबसे बड़ी बुराई है। क्योंकि एक मर्तबा साइकोलॉजी के एक टीचर ने क्लास के अंदर, मैं जिस मिसाल की तरफ आना, इस मिसाल से एक बात समझाना चाहता हूं। दिखाया एक पेपर व्हाइट, ये किसी हुकूमत का व्हाइट पेपर नहीं है जो आमतौर पे इशू किया जाता है, बस दिखाया व्हाइट पेपर, बच्चों से पूछा ये क्या है, का व्हाइट है। एक मर्तबा पेन से एक नुक्ता लगा दिया ब्लैक, कहा बच्चों बताओ क्या है। पूरी क्लास ने हाथ उठा के कहा इसके ऊपर एक काला नुक्ता है, स्याह नुक्ता है, स्याह दाग है, ये कहा वो कहा। उन्होंने कहा तुम सबकी अप्रोच कितनी गलत है, इतने सफेद पेपर को नहीं देख रहे हो, उस पर छोटा सा दाग देख रहे हो। कि जब दूसरों का मामला हो तो हमेशा उसकी सफाइयों के जो हिस्से हैं उस पर नजर डालो, और जब अपने को पाक करना चाहते हो तो उस बारीक हिस्से को देखो कि जो तुम्हें तबाह कर सकता है। यहीं पर पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के और वो हदीस जिसका रब्त शहजाद साहब के घर की मेज से हो जाएगा। यानी उस मेज से इसमें नहीं, हम बैठे थे और गुफ्तगू हो रही थी तो आई थी बात अमल की कि जब एक आदमी बुराई करता है तो खुदावंद ताला फौरन उसकी बुराई के ऊपर किरामत, मतलब यानी कि नहीं कहता किरामन कातिबीन से कि लिखो 40 दिन का मौका। वो कहते हैं परवरदिगारा ये गुनाह कर चुका, का टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो, अब तौबा कर लेगा, अब तौबा कर लेगा, अब इस्तिग़फ़ार कर लेगा, 40 दिन का वक्त। सवाल आया था मुझसे, मेरे भाई ने पूछा कि मौलाना वो क्या है। दुआए कुमैल में इमाम फरमाते कि मेरे उन गुनाहों को भी माफ कर दे कि जिन्हें किरामन कातिबीन ने नहीं लिखा। बहुत अच्छा सवाल था, दिल खुश हो गया। हाँ वो गुनाह, क्योंकि 40 दिन तक का मौका है, अगर इस मुद्दत में उसने माफी मांग दी तो गुनाह लिखा ही नहीं जाता। लेकिन जब नेकी का इरादा करता है तो खुदा कहता है उस नेकी के इरादे को भी लिख दो, नेकी करता है तो उस पर भी वो कहता है लिख दो, और उसके बाद उसके 10 गुना सवाब भी देता। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आइए पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, गुनाह के असरात हमारी जिंदगी गुनाह के असरात हमारी जिंदगी में बताते हैं। इमाम फरमाते हैं कि जब एक आदमी को पैदा किया गया तो उस वक्त उसका दिल बिल्कुल साफ था, सफेद था, रोशन था, नूरानी था। बल्कि यहां पे ज़ीशान हैदर जवादी साहब का एक जुमला कहता हुआ चलूं। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब कहते हैं जन्नत में जाना आसान है, जहन्नम में जाना मुश्किल है। जन्नत में जाना आसान, जहन्नम में जाना मुश्किल। मैंने आमदन ये जुमले को यहां पर रखा क्योंकि कल उनकी वफात को 10 साल हो गए उस मुस्लिह आजम की, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। तो मरहूम ज़ीशान साहब कहते हैं कि जन्नत में जाना आसान, जहन्नम में जाना मुश्किल। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए जैसे आए थे उसी तरह चले जाओ, जन्नत में चले जाओगे। इस्लाम की फितरत। जहन्नम में जाने के लिए हराम खाना पड़ेगा, गस्ब करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, गीबत करनी पड़ेगी, जुल्म करना पड़ेगा, मोमिनीन के हुकूक पामाल करने पड़ेंगे, खुम्स खाना पड़ेगा, नमाजें कज़ा करनी पड़ेगी, मासियत करनी पड़ेगी, और 1 का 40 बनाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वाह वाह। हाँ, क्या ये सब जब करेंगे तब जहन्नम में जाएंगे। तो जन्नत में जाना तो बहुत आसान। भाई इमाम क्या फरमाते हैं कि इंसान जब पैदा हुआ तो उसका दिल बिल्कुल सफेद। ये कैसा वाला दिल है, अली अलग मसला हो गया। रसूल का खैर मुसलमानों ने रसूल का दिल भी नहीं छोड़ा। ये तो बहरहाल बड़े दिल गुर्दे का काम है जो रसूल के दिल के लिए ये लिखे। बड़े दिल गुर्दे का काम है। हमारा इतना बड़ा दिल नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। बाज़ीज़ान इकरामी आइए, हुआ क्या? इमाम फरमाते बिल्कुल सफेद रोशन। जब गुनाह करता तो एक काला नुक्ता उभरता है, और जैसे ही वो तौबा करता है वो नुक्ता साफ। वाह वाह। जैसे ही तौबा करता है फिर वो साफ।
वाह वाह। अच्छा, खुदा ने कितना मौका दिया का रोजाना तुम 3 मरतबा नमाज पे बुलाए, ताकि हो सकता है अगर कोई गुनाह हुआ तो अब तौबा कर ले। लेकिन हमारी तौबा भी क्या है? गुनाहों का सैंडविच। हमारी तौबा गुनाहों का सैंडविच है। आप कहेंगे वो क्या? आपने देखा ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, दरमियान में गोश्त रख दिया, सब्जी रख दी, बर्गर। भाई आपके सैंडविच है, बर्गर है, जो भी है। लेकिन अब बहरहाल मैं वो बर्गर वर्गर की इस्तिलाह पे नहीं जाता, इसलिए तो उसमें बाद में फिर ब्रेड का खानदान वो भी आएगा जहां गर्म कुत्ते खाने पड़ते हैं, हॉट डॉग भी लोग कहते हैं। तो बहरहाल मैं उन तमाम चीजों की तरफ नहीं आना चाहता। लेकिन आइए बात देखिएगा, जो सैंडविच का ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, दरमियान में कुछ रख दिया। हमारे साथ गुनाहों का मसला ये, अभी एक झूठ बोले उसके बाद कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अतूब इलैह, फिर उसके बाद नीचे दूसरी ब्रेड लगा दी गीबत पे। अब आप ये देखिएगा ये तौबा क्या है। इस तौबा के लिए तो 8वें इमाम फरमाते हैं कि जिसने खुदा से तौबा की, मन इस्तगफरा बिलिसाने वलम यंदिम कल्बा फकद इस्ताज़ा नफ्सहु, वो खुदा का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो दीन का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो अपना मजाक उड़ा रहा है कि इस्तिगफार जबान से कर रहा मगर दिल से राजी नहीं है, दिल से नादिम नहीं। पहले दिल से नादिम हो। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं तौबा क्या का नादिमन बिलकल्ब, दिल से नादिम हो जाओ, रिग्रेट हो दिल से। हमारा तो दिल कभी नहीं मिलता, इसीलिए अब आर्टिफिशियल दिल का इंतजाम किया जा रहा है। हमारा दिल कभी नहीं मिलता। भाई इमाम क्या फरमाते हैं कि पहली मंजिल है कि दिल का नादिम होना, दूसरी मंजिल है जबान से इस्तिगफार करना, तीसरी मंजिल यह है गुनाहों को तर्क कर देना, चौथी मंजिल यह है फिर अहद करना, वो गुनाह फिर नहीं करेंगे। हम तो अहद करते हैं कि गुनाह करेंगे फिर इस्तिगफार करेंगे, गुनाह करेंगे फिर इस्तिगफार करेंगे। नहीं, आओ मैं मोमिन बताऊं मोमिन किसे कहते हैं। मौलाए कायनात एक मुकाम पर फरमाते हैं कि मोमिन से गुनाह होता नहीं, और अगर हो जाता है तो फौरन वो इस्तिगफार कर लेता है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं और पूरी उम्र जब जब वो गुनाह याद आता है उस गुनाह को याद करके इस्तिगफार करता है, गुनाह नहीं करता। वो गुनाह जो किया उस गुनाह को याद कर करके बार बार इस्तिगफार करता है। हम गुनाह फिर इस्तिगफार फिर गुनाह, एक सैंडविच तैयार कर लिया भाई इस गुनाह की, इस इस्तिगफार की, यानी इस गुनाह के मुकाबले में क्या हैसियत रही। याद रखिएगा खुदा का मजाक उड़ा रहा है शख्स। नहीं, मसला ये कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं सभी कुछ के साथ प्रूफ लग गया, दीन का कोई प्रूफ नहीं है, हर चीज के साथ प्रूफ। भाई ये क्या आपकी घड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है, अब हमने कहा कि मैं पानी में डाल दूं, हाँ वाटर प्रूफ। ये क्या चीज है भाई? क्या ये स्मोक प्रूफ? ऐसे इंसान अगर बना के खुदा भेज देता तो बहुत सी चीजों के जायके का अंदाजा ही आपको ना होता। लेकिन एक दूसरा मसला जरूर हल हो जाता, हम जैसे लोग जो बहुत हसास हैं बार बार छींकने लगते हैं, वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती। नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदा बेहतर जानता है। क्योंकि आप जानते हैं मौला से पूछा, मौला के पास आया जो दहरिया, उससे कहा कि बता अगर तू ये चाहता कि तेरी शक्ल कैसी हो तो कैसी पसंद करता? कि जिस तरह खुदा ने बना के भेजा, जो मुनकिर खुदा था, जैसी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती थी, वाह वाह, जैसी उससे बेहतर हो ही नहीं सकती। लिहाजा इतराज नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा था और उसके बाद एक मिजाज का गोशा, लेकिन उस मिजाज में आपके लिए अपने लिए एक तबलीग का चुपता हुआ नुक्ता पहुंचा रहा था। अब आइएगा जिस चीज की बात कर रहा, खुशबू नहीं पहुंचती, बाज़ीज़ाने ग्रामी खुशबू की बात आई है। यहीं पर एक जुमला कहूंगा, बच्चों अपने माँ बाप की इताअत करना। बात आई है तो हदीस का एक जुमला और नकल करता चलूं। रसूल फरमाते हैं कि जो जन्नत में जाएगा जन्नत में, जो जहन्नम में जाएगा जहन्नम में। लेकिन जन्नत की खुशबू का आलम यह है कि जहन्नम में रहने वाले जहन्नमियों को भी जन्नत की खुशबू पहुंचेगी, जो खुशबू होगी वहां की। लेकिन जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा वो जन्नत में भी नहीं जाएगा और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत की खुशबू आखिर कितना फासला? तो रसूल ने फरमाया 50,000 साल का जो फासला होता है उस फासले तक जन्नत की खुशबू जाएगी, और ये शख्स उससे भी कहीं बदतरीन फासले पर होगा जाना। अल्लाह अकबर। बात मेरी फिर कहां से कहां चली जा रही है। एहसास और हवास के अंदर मैं नहीं बात कर रहा हूं उस मौजू के ऊपर, लेकिन हाँ यकीनन हवास में रह के गुफ्तगू कर रहा हूं, मौजू एहसास हवास का नहीं। बाज़ीज़ो तौबा की बात, इस्तिग़फ़ार की बात, तो आप अंदाजा लगाइए कि तौबा किस तरह होनी चाहिए। इमाम ने फरमाया। अब आइए मैं जिस जुमले की तरफ आना चाहता हूं वो जुमला कि इमाम के मामले में कई मरतबा हम कहते हैं, मैं प्रूफ को पहले तमाम कर दूं, स्मोक प्रूफ, वाटर प्रूफ,
तो क्या हो गया भाई? का शैतान जो है ना, पहले तो हम कहते थे लाहौल चला जाता था, अब तो लाहौल कहते हैं तो शैतान और मुसल्लत हो रहा है। अभी अभी हमने लाहौल पढ़ी, उसके बाद झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लाहौल पढ़ने के बाद जाके वो हम जो है उन जगहों पर जहां पर हराम सर्व किया जा रहा है, नजिस ग़िज़ा साथ पक रही है, उसे खा रहे हैं। लाहौल क्या रहा? बस ये तो मसला है कि शैतान भी लाहौल प्रूफ हो गया। हम लाहौल पढ़ रहे हैं और उसके बाद शैतान पर कोई असर नहीं हो रहा। बस ये तो वहां पर चला हूं। अमाल के मामले में कई मरतबा बात होती है, कहा भाई आप मौला की इताअत कीजिए, मौला की तासी कीजिए। बहुत आसान नुस्खा है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लेके यहां तक दुनिया के हर गोशे में तमाम शियों का ये नुक्ता। मौला की नमाज देखी कैसी थी? मौला को रोजा देखा? मौला की इबादत कहां? पता है हमें, सुना है, पढ़ा है, करिए। कहां हम कहां वो? नमाज कहां हम कहां वो? माँ बाप की इताअत कहां हम कहां वो? का फिर उसके बाद रिज़्क़ हलाल कहां हम कहां वो? का बीवी के हुकूक कहां हम कहां वो? बच्चों के हुकूक कहां हम कहां वो? क़यामत आ गई, जन्नत तकसीम हो रही, जहन्नम तकसीम हो रही, फैसला हो गया हम वहां जाएं जहां इमाम नहीं होंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जहां वो वहां हम। हमने कहा मौला जहां वो वहां हम, खुदाया जहां वो वहां हम। भाई इमाम कहेंगे, अरे पूरी उम्र तू कह रहा था, अगर एक बार इमाम कह देंगे तो हमारा क्या हाल होगा? पूरी उम्र हमने कहा वो कहां हम। खुदा ने जब जन्नत जहन्नम तकसीम की, हमने कहा जहां वो वहां हम। एक मर्तबा इमाम कहेंगे, अरे तू पूरी उम्र कह रहा था, आज हम कह रहे कहा तुम कहां हम। तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो हमारा क्या होगा? तो बुरा हो जाएगा। बाजीजो याद रखिएगा, इमाम की इताअत। भाई इमाम ने क्या फरमाया? तौबा की तुमने साफ, लेकिन गुनाह किया, फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया, फिर गुनाह किया, तो वो काला होता जाता है, काला होता जाता है, काला होता जाता है, फिर पूरा काला हो गया। अब जो पूरा काला हो गया तो उसके बाद क्या होता है? आप जो पूरी तरह से काला होता है तो फिर उसके बाद सफेद होने के चांस खत्म। कुरान मजीद ने कहा फिर मोहर लग गई। अब जो मोहर लग गई, ये पोस्ट ऑफिस वाली मोहर नहीं है। अब ये मोहर लग गई तो उसके बाद कुरान ने कहा खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम। अब हिदायत समझ में नहीं आएगी। अगर कभी हिदायत की बात हो हमारी समझ में ना आए, कभी अहकाम खुदा हमारी समझ में ना आए और दिल न चाहे करने का, तो वह एक मर्तबा कहे माबूद मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ कर दे कि गुनाह का इतना असर हो गया कि अब तेरे अहकाम मेरी समझ में नहीं आते। बाज़ीज़ान ग्रामी, छोटे छोटे गुनाह। किसी ने पूछा मौला से, मौला सबसे बड़ा गुनाह क्या है? झूठ भी है, ग़ीबत भी है, जुल्म भी है, गुस्सा भी, ये सब गुनाह ने कबीरा है। इमाम से पूछा मौला बताइए सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इमाम ने फरमाया जिस गुनाह का करने वाले अपने गुनाह को छोटा समझे वही सबसे बड़ा। हमारा मसला ये जो सुबह से शाम तक गुनाह कर रहे हैं, हर गुनाह को छोटा समझ के कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि अभी भी हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं। आपने उनको देखा है? अगर ऐसा ही तो खुदा न करे देखूं। आपने उस शख्स को देखा है? अरे आपने उस शख्स को बहुत दूर है, आपने अपने आप को देखा है? वाह वाह। अगर अपने आप को देख ले तो सारे मसले खत्म हो जाए। पर रसूल खुदा हैं और रसूल खुदा के साथ उनके असहाबे एक सफर पे जाते हैं। रसूल खुदा किसी जमात के अमीर नहीं है कि ऑर्डर दें और उसके बाद कहें सारी कायनात के अमीर हैं। जो इस दुनिया के अमीरों का कायदा ही होता, ऑर्डर देते हैं, करते कुछ नहीं। इमाम खुमैनी जो इतने कामयाब रहबर इनकलाब है, उसकी वजह जानते हैं? बस आ गया जुमला, देखिए याद रखें। अब मैं कह के ही बढ़ूंगा आगे, नहीं कहूंगा तो क्या जुमला था लोग बाद में पूछ लेंगे। लेकिन मसला ये होगा, फिर आप कहेंगे कि आपने हमको मुसीबत में डाल दिया। माफ करेंगे मर्द हजरात। इमाम खुमैनी की वफात के बाद इमाम खुमैनी की अहलिया से पूछा गया कि आप इमाम खुमैनी के बारे में क्या बताएंगी, आपका कैसा तजुर्बा रहा? इतने लंबे अरसे तक ऐसे मुज्तहिद, ऐसे मर्जा और ऐसे रहबर के साथ थी, आपका क्या तजुर्बा है? तो उन्होंने मुख्तलिफ जो तजुर्बात बताया, उसमें पहली बात बताई
कि मेरा जब से उनसे अक़्द हुआ, मैंने जो मेरी जिम्मेदारियां होती थी अदा की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां थी जो अदा की, लेकिन उन्होंने पूरी उम्र मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं मांगा। दोनों अपने फराइज अदा कर रहे थे, लेकिन याद रखें कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के नताइज निकलते हैं। कहा उन्होंने पूरी उम्र मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं तलब किया। भाई जिंदगी वो भी है। अब आइए वापस चलाऊं, रसूलुल्लाह जा रहे हैं सफर पे, तो नहीं कहेंगे भाई जाओ तुम लोग तिनके चुनके लाओ, तुम ये करो। रसूल के लिए सारे मौरखीन ने लिखा कि रसूल जब सफर पे जाते थे तो काम बांटते थे, तो सबसे पहले जो सख्त काम होता था वो अपने ले लेते थे। रसूल ने कहा आओ चलो इस रेगिस्तान में कुछ तिनके कुछ लकड़ी के टुकड़े चुने, ताकि उसके बाद आग जलाएं और उसके बाद खाना पकाएं। रसूल खुद आगे बढ़ रहा, लेकिन उम्मतियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये दूर तक तो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में इस डेजर्ट के अंदर कहां कोई तिनका और लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, ये तो ख्वाब है। रसूल ने कहा चलो। रसूल भी गए, असहाब भी गए, हर एक ने चुना और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मुट्ठी दो मुट्ठी दामन भर के जो भी जितना पा सकता था वो लेकर आया। लाने के बाद नबी ने कहा भाई इस जगह के ऊपर रख दो। अब लोगों ने रखा। रसूल कभी आयतें पढ़ के समझाता है, रसूल कभी हदीसें बयान करके समझाता है, कभी रसूल नक्शा खींच कर समझाता है, कभी मिसालों से समझाता है। कुरान में बार बार जो मिसालें दी गई, किसी ने पूछा रसूल से या रसूल अल्लाह ये मिसालों से कुरान में खुदा ने क्यों समझाया, तो बताया आपने क्योंकि हर इंसान की अक्ल बराबर नहीं होती है। मिसाल से इसलिए समझाया कि जो आयत से ना समझ सके वो मिसाल से समझ नहीं। वाह वाह वाह। भाई एक मर्तबा रसूल ने कहा ढेर डालते जाओ, डालते गए, अभी तक तिनका नहीं था, लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, इतना ढेर बन गया। एक तरफ रसूल, एक तरफ सारे असहाब और उम्मती। रसूल ने क्या तुम में से कोई मुझे देख पा रहा है? कहा या रसूल अल्लाह दरमियान में रुकावट है, एक पहाड़ खड़ा हो गया इन तिनकों का। रसूल ने कहा अभी मैंने जब चुनने के लिए कुछ देर पहले कहा था तो तुमने कहा दूर तक कुछ नहीं है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, कुछ नहीं मिलेगा, और अभी इतना सब कुछ लेकर आ गए। कहा रसूल अल्लाह पहली नजर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक मर्तबा नबी ने कहा बस तुम्हारी जिंदगियों का मामला भी इस रेगिस्तान की तरह है कि निगाहे अव्वल जब डालते हो तो तुमसे ज्यादा पाकीज़ा किरदार कोई नहीं, तुमसे ज्यादा साफ सुथरा इंसान कोई नहीं, लेकिन जब चुनना शुरू कर दोगे, अपने गुनाहों का हिसाब लगाओगे तो इतना बड़ा ढेर हो जाएगा। लिहाजा अपने गुनाहों को हल्का समझने से डरो। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अब आपकी समझ में आ गया। हम अपना मुहाज़बा मुहर्रम में करते हैं, रमज़ान में करते हैं या नहीं करते या भूल जाते हैं। मैं इन मजलिसों के बाद जो चंद मजलिसें 12-11 मजलिसें हुई हैं, उसके बाद एक बात कहूंगा, नतीजा और उसके बाद गुफ्तगू तमाम। बाज़ीज़ो नतीजे की हदीस से पहले 7वें इमाम की हदीस जहां आप फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम युहासिब नफ्सहु कुल्ल यौम, वो हमारा शिया नहीं है कि जो रोजाना अपने नफ्स का हिसाब न करता हो। मौला हम दिन रात तो कहते हैं कि हम आपके हैं, और आप कहते हैं कि जो हमारा शिया है वो अपने नफ्स का हिसाब करता हो। तो आज से शिया बन जाओ अजीजो, नफ्स का हिसाब करो, तैयारी करो। मेरे भाई रिवायतें नकल करते हैं, बताते हैं कि उलमा कह रहे हैं इमाम का ज़ुहूर करीब है, यकीनन बहुत करीब है। मैं ये दुआ के कलमे जो आपके साथ पढ़ता हूं, परवरदिगारा पलक झपकने से पहले उन्हें भेजे, लेकिन माबूद मेरी दुआएं सच्ची नहीं, मेरी नमाज सच्ची नहीं, मेरी इबादत सच्ची नहीं, मेरा रोजा सच्चा नहीं, मेरी तिलावत सच्ची नहीं, पूरी जिंदगी अरे झूठ का मुलम्मा बन चुकी है। बकौल अमजद इस्लाम अमजद, ये चाहते ये पजीराइयां भी झूठी हैं, ये उम्र भर की शनासाइयां भी झूठी हैं, तमाम लफ्जों मानी भी झूठ है अमजद, हमारे अहद की सच्चाइयां भी झूठी, बहुत खूब, हमारे अहद की सच्चाइयां भी झूठी, हमारी दुआओं में झूठ है। हम कहते हैं परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में जल्दी कर। क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? ये मजलिस के फ़िक्रे हो रहे हैं और एक मर्तबा आवाज उठे इमाम आ रहे हैं, क्या इमाम आ गए? खुदा करे वो सच हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा इस जमीन पर और कोई दूसरा सच आने वाला नहीं है इमाम के जोर से। बेशक अगर हम तैयार हैं इसके लिए, क्या हमारे मौला को हम अपने घरों में बिठा सकते हैं, मेहमान कर सकते हैं? मोहब्बत के एतबार से उनको अपने दिल में नहीं बिठा सकते, वजूद के एतबार से अपने घरों में नहीं बिठा सकते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
और उसके बाद ये हमारे दावे, उसके बाद हमारे दावे। बस ये तो खत्म में दुआ की गुफ्तगू है। बस याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका मौला, मेरा मौला राजी हो गया तो याद रखिएगा सारे मसले हल। हम कह रहे हैं मौला आ जाए, वाकई सच कह रहे हैं, कह रहे थे अगर सच तो अब तक आ गए होते। मैं ये कह रहा था मेरे मौला आ जाए, लेकिन मैं जो डिग्री कंप्लीट कर रहा हूं खुदा करे वो डिग्री कंप्लीट हो जाए। अजीजों, इल्म के उरूज का जमाना होगा, उस डिग्री के बारे में क्यों सोच रहा हूं? हम ये सोच रहे हैं कि मौला आ जाए, लेकिन हाँ इतना वक्त जरूर लग जाए। याद रखिएगा, मुहासबा कीजिएगा अपना, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। बाप, बहनें, बेटियां, माएँ और बच्चे, मेरे बुजुर्ग फैसला करेंगे। हमने कहा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, रिश्ता तय कर लिया है, रबीउल अव्वल में शादी करनी, मौला आए लेकिन ठाक की कराची में एक शादी हो जाए, है या नहीं है? मौला आप आ जाए, लेकिन ये मैंने घर लिया है, ये घर मेरा पे ऑफ हो जाए, उसके बाद आप आइएगा। अरे क्यों? जब मौला को बुला रहे इसकी फिक्र ना करो, इसलिए क्योंकि अगर मौला आएंगे तो तुम्हारी बेटी के लिए जो बेहतरीन रिश्ता मौला चुनेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। वाह वाह वाह। घर की बात करते हो तो इससे बेहतर घर नहीं मिल सकेगा जो तुम्हें मौला जन्नत में अता करेंगे, और वो भी अगर जन्नत में रफीक तुम्हारा इमाम, वक्त का इमाम हो तो। मंजिलें है ना। बाजीजों, तो इन दुआ आखिरी जुमला मुहासबे की बात की मैंने, अब जो जुमले पे आना चाहता हूं, मौला कायनात फरमाते हैं, अजीजों इमाम फरमाते हैं कि जिसका कल पिछले आज से बेहतर है वो सईद है, कामयाब। पहली मुहर्रम और 11 मुहर्रम अगर आपकी बराबर है तो कोई फायदा नहीं। इमाम फरमाते हैं कि जिसकी 10 मुहर्रम से 11 मुहर्रम बेहतर हो, नहीं 11 मुहर्रम 10 मुहर्रम से बेहतर हो जाए, तब्दीली आ जाए इस मुहर्रम में। अगर आज जिसका पिछले कल से बेहतर, वो कामयाब, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस। जिसका आज कल से बदतर है, मौलाना जब पाकिस्तान में था तो बात ही अलग थी। पाकिस्तान में था तो जामिअतुल मुंतज़र, जामिया अहलुल बैत, जामिअतुल मुस्तफ़ा। अब तो दीन से बिल्कुल दूर हो गया। तो जिसका आज कल से बदतर हो जाए, इमाम फरमाते हैं उस पर खुदा की लानतें हैं। मेरा अल्फाज नहीं मौला के, मुझे हक भी नहीं पहुंचता कहूं, लेकिन यह भी हक नहीं पहुंचता कि कहुए इमाम को न पहुंचाऊं। वाह वाह। जो इमाम ने कहा उसे न पहुंचाऊं, इसे इसका भी मुझे हक नहीं पहुंचता। हाँ, यह हक पहुंचता कि उसे पहुंचाऊं। और तीसरी बात इमाम ने कहा, जिसका आज और कल बराबर। याद रखिएगा, दौलत के मामले में कनात बहुत अच्छी चीज है, दुनिया के मामले में कनात बहुत अच्छी चीज है, इताअत के मामले में कनात बहुत बुरी चीज है। जैसे थे वैसे ही रहना है, क्योंकि मौला कायनात फरमाते हैं नेमतों के मामले में हमेशा नीचे देखना, इताअत के मामले में हमेशा ऊपर देखना, क्योंकि अगर ऊपर देखोगे तो हमेशा तब्दीली होगी तुम्हारी, बदलोगे। बाजी तो इमाम फरमाते हैं कि जिसका आज और कल बराबर हो जाए वो मखबून है, वो करप्ट है, कोई प्रोग्रेस नहीं। बाज़ीज़ान इकरामी, जब ये बात समझ में आ गई तो अब ये फैसला करना है कि हमें सईद इमाम की बारगाह में सईद बन के जाना है। वाह वाह वाह। अगर सआदत नहीं होगी तो याद रखिएगा, फिर उसके बाद हमने अपने इमाम को राजी नहीं किया, मकसद हयात नहीं पा सके। बाज़ीज़ान इकरामी, आज 11 मुहर्रम, काफिला करबला से निकल रहा, लेकिन उस शान के साथ नहीं निकल रहा जिस शान के साथ मदीने से आया था। हाँ अजीजान इकरामी, रात करबला में अहले बैत ने बगैर साहिबान और बगैर खैमे और बगैर कनात के गुजार दी। सुबह आशूर, अरे सुबह याज़दहुम शुरू हुई बाजीजो, अब कैदियों को ले जाया जाने लगा। सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में तोके खारदार है। बीवियों को नाके पर सवार किया जा रहा है। नाके आ गए, लेकिन नाके पे कोई महमिल नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं, बस नाका ऊंट ला दिया गया।
शिम्र आगे बड़ा चाहता है कि बीवियों को सवार करा दे। ज़ैनब ने कहा शिम्र दूर हट जा। फिर उसके बाद आपने एक एक बीवी को सवार कराया। लैला आप सवार हो जाए, रबाब को सवार करवाए, फरवा को सवार कराया, एक एक बीवी को सवार कराया। ज़ैनब अकेली थी और फिजा रह गई थी। अब ज़ैनब फिजा से कहती है, ए अम्मा फिजा आइए मैं आपको सवार करा दूं। फिजा ने कहा शहजादी मैं आपको सवार कराती। ज़ैनब ने कहा नहीं, आपको मेरी माँ के हक की कसम है मैं आपको सवार कराऊंगी। वह फिजा से जो ही ये कहा, फिजा की ताकत जवाब दे गई। बस ज़ैनब ने फिजा का बाजू थामा, फिजा को नाके पर सवार करा दिया। अब ज़ैनब अकेली रह गई। अरे जब मदीने से चली थी, हुसैन थे, अब्बास थे, अकबर और कासिम थे। एक मर्तबा मक्तल का रुक किया, भैया हुसैन, भैया अब्बास, ए लाल अकबर, ए लाल कासिम। बस ज़ैनब जा रही है। बस कोई न था कि जो बढ़कर ज़ैनब का बाजू थामे। हाँ, हथकड़ियों की आवाज सुनाई दी, जंजीरों की आवाज सुनाई दी। इमाम चहारुम आगे बढ़े, फूफी का बाजू थामा, फूफी को नाके पर सवार करा दिया। चलने लगा ये काफिला। अजीजो खुदा, अरे खुदा किसी बेटे को उसके बाप के लाशे के पास से इस अजनबी की तरह न गुजारे जिस तरह सैयद सज्जाद को गुजारा गया। बाजीजो ये काफिला जब कब्रों के लाशों के करीब से गुजरने लगा, एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। उधर सैयद सज्जाद बाप के लाशे की तरफ बढ़े, चेहरे का रंग मुतगय्यर देखा। ज़ैनब ने पूछा, ए लाल सैयद सज्जाद तुम्हारी हालत बड़ी अबतर हो रही है। कब फूफी अम्मा क्यों ना मेरी हालत अबतर हो कि जिसका जवान बेटा मौजूद हो और उसके बाप का जनाजा बेगौरो कफन मक्तल में तपती रेत पर पड़ा रहे। बाजीदो ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को संभाला, मगर अब ज़ैनब मुतगय्यर हो गई, हालत उनकी मुतगय्यर। आई हुसैन के लाशे का तवाफ कर रही, बस चक्कर लगाया। उसके बाद एक मर्तबा सर पे हाथ रख के रोने लगी। बस सैयद सज्जाद ने कहा, हे फूफी अम्मा, हे फूफी अम्मा, हे फूफी अम्मा, ये आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रही? का सैयद सज्जाद, अम्मा ने कहा था जब आखिरी बार हुसैन से रुखसत होना तो हुसैन को बोसा ले लेना, लेकिन ये अम्मा ज़ैनब शर्मिंदा है, इस वादे को पूरा नहीं कर सकती। अरे मेरे भाई का पूरा जिस्म जख्म बन गया है। उसके बाद आखिरी रिवायत ज़हमत तमाम, जनाब ज़ैनब बैठी रो रही है। सैयद सज्जाद ने एक गोशे पर संभाला, दोबारा जो बैठकर रोने लगी। पुपी अम्मा अब चलिए काफिला बढ़ता है, कहीं शिमर बढ़ के फिर अजियत न दे। हे पुपी अम्मा अब क्यों रो रही है? कहे लाल जब मैं कूफे में थी, एक मर्तबा मेरी चादर जो सरकी थी, भैया ने आबा का साया किया था। मैंने कहा था हे भैया, अरे जब कोई वक्त आएगा तो मैं आपके इस एहसान को बदला चुकाऊंगी। ए लाल आज वो वक्त आ गया, हुसैन का लाशा बेगौरो कफन पड़ा, लेकिन ज़ैनब बहुत शर्मिंदा। ए भैया माफ कर देना, अगर तुम बेकफन हो तो ज़ैनब बेचादर है। मैं हाथों को छोड़ के कहूंगा, ए बीबी, चाहने वाले आंसुओं की चादर पिरो के लाए हैं, भाई के लाशे पर डाल। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबू यन्क़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार अपने चादर मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, हमारी इस कलील सी कोशिश को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें तज़किया नफ्स और तहारत नफ्स की और अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हमें मुहर्रमात और मकरूहात से इज्तनाब की तौफीक अता फरमा। हमें वाजिबात और मुस्तहबात की अदायगी की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी तरबियत और अपनी औलाद की तरबियत और तबलीग मुआशरा की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हिदायत की राह में जो परेशानियों, उन परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमा। परवरदिगारा आसानियों का तू पैदा करने वाला है, हमारी हिदायत की राह में आसानियां पैदा फरमा। जो बेरोजगार उन्हें रोजगार अता फरमा, जो बरसर रोजगार उनके रोजगार में तरक्की अता फरमा, जो मशगूल तिजारत उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। अपने हबीब के सदक़े में तमाम मरीजों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। बिलखुसूस मोहतरम ज़फरिया वली साहब और दीगर तमाम मरीजों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। करीम हम इतने दुनियादार हो चुके हैं
कि अपने जिस्म की एक एक बीमारियों के बारे में तेरी बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके शिफा तलब करते हैं। परवरदिगारा हमारी रूह बीमार है, हमारी रूह को शिफा अता फरमा। परवरदिगारा हमारी अक्ल बीमार है, हमारी अक्ल को शिफा अता फरमा। परवरदिगारा हमारी जबान बीमार है, हमारी जबान को शिफा अता फरमा। करीब हमारी तमाम लिसानी और रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। अज़ा को फरोग अता फरमा। अज़ा की राह में जो रुकावटें, उन रुकावटों को दूर फरमा। करीब हमारे अमाल से वक्त के इमाम को राजी और खुशनूद फरमा। इमाम के ज़ुहूर में जल्दी फरमा। हमारा नाम उनके नासरीन में रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। Ya Hussein. 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 Ya Hussein.